السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب العجماء جرحها جبار۔ ابواب الزکاة میں مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کے اندر جو المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس جو حدیث کا یہ ٹکڑا اس باب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس حدیث کی ہم دراسہ کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتا حدثنا قتیبہ قال حدثنا الليث بن سعد، کہتے ہیں ہم سے بیان کیا قتیبہ کون ہے؟ قتیبہ بن سعید البغلانی، قتیبہ بن سعید البغلانی، وہ روایت کرتے ہیں لیث بن سعد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے۔ ابن شہاب کون ہے؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کسے؟ سعید بن مسیب جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور ابو سلمہ رحمہ اللہ سے۔ ابو سلمہ کون ہے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جرحها جبار۔ العجماء کسے کہتے ہیں؟ عجمہ کہتے ہیں بہیمہ کو، جانور کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بہیمہ کو۔ یہ عجمہ جو ہے مؤنث ہے عاجم کی، عجمہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے عاجم کی۔ اور عاجم کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو بولنے پر طاقت نہ رکھتے ہوں، بات کرنے کی قدرت اور طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو اسی لیے عرب جو تھے وہ فصیح اللغہ تھے، اور اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی ان لوگوں کو عربی زبان ان لوگوں کے پاس نہیں تھی، ان لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے، یعنی بات کرنے والا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر جو عجم یا عجمہ جو ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو بولنے پر بات کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو اس کا استعمال جانور کے لیے کیا جانے لگا، کیونکہ جانور بات کرنے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو کیا کہا حدیث کے اندر؟ العجماء یعنی جانور، جرحها یعنی کہ جو کچھ وہ نقصان کرتے ہیں، کسی کو مار دیے، کسی کے کھیت کا اتلاف کر دیے، نقصان کر دیے، چر لیے۔ جبار، جبار کسے کہتے ہیں؟ جبار کہتے ہیں الحدر الذی لا دیۃ فیہ ولا ضمان، ایسا نقصان جس کے اندر نہ دیت ہو نہ اس کی کوئی ضمان ہو، یعنی کہ العجماء جرحها جبار۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے، کسی کے پاس کوئی جانور ہے، لفظی ترجمہ سمجھ گئے نا؟ العجماء جانور، جرحها ان کا نقصان پہنچانا، جبار معاف ہے، اس کے اندر دیت اور ضمان کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث اس حدیث کے لفظ کا کہ شرح اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس جانور ہے اور وہ جانور اگر کسی کا جانور ہے اور وہ جا کر کے کس دن کے اندر، کیونکہ دن کے اندر جو کھیت یا حقول وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی نگرانی کی ذمہ داری صاحب الحقل اور صاحب الزرع کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھیت کی نگرانی کریں، اور دن کے اندر جانوروں کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھلا چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کا جانور کسی کے دن کے اندر کسی کا جانور کسی کے کھیت کو جا کر کھا لیا، نقصان کر دیا، تو اس طریقے سے جو صاحب جانور ہوگا، صاحب البہیمہ ہے، اس کے اوپر کوئی دیت، کوئی ضمان، کوئی چیز نافذ اور عائد نہیں ہوگی۔ لیکن رات ہو گئی، اب رات کے اندر جو صاحب البہیمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جانور کی حفاظت کرے، اس کو باندھ کے رکھے۔ رات کے اندر کسی صاحب الزرع کے کھیت میں گھس گئے وہ جانور اور کھا لی، تو وہاں پر یہ قاعدہ نہیں لاگو ہوگا العجماء جرحها جبار، کیونکہ اس وقت صاحب البہیمہ اور جو صاحب جانور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جانور کی حفاظت کرے، کیونکہ تقصیر اس کی طرف سے ہوئی، کمی اس کی طرف سے ہوئی، تبھی تو اس کا جانور جا کے دوسرا کا کھیت رات میں کھایا ہے۔ یا اسی طریقے سے دن کے اندر ہے اور انسان یا اس کا مالک اس جانور کے ساتھ ہے، اس کو چرا رہا ہے، اور
उस वक्त चराते वक्त उसने अपनी तरफ से जानबूझ के तकसीर की है, गरचे दिन है, तो वहां पर भी उसको जमान देना पड़ेगा, उस पर क्या होगा, जमान आयद होगा और उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हदीस का जो दूसरा टुकड़ा है, वल मादिन जुबार, और मादिन क्या है, मादिन पहले समझ लेते कहते किसे हैं। मादिन जो है वो जगह या वो मकान जिससे मुजवहरात और इसी तरीके से सोना चांदी नुहास वगैरह जमीन से लोग निकालते हैं। तो क्या कहा, जुबार, यानी उस पर कोई जमान कोई दियत वगैरह नहीं है, ये लोगों का तर्जुमा हुआ। माना क्या है इस हदीस के लफ्ज का, शरह क्या है इस हदीस के लफ्ज का? शरह मतलब यह है कि अगर कोई आदमी किसी इंसान को उजरत पर कोई काम के लिए रखता है, गड़ा खोदने के लिए या कान से मादिन से सोना चांदी या जो भी कुछ जमीन से निकल रही उन चीजों को निकालने के लिए किसी इंसान को रखता है, अब इत्तेफाक से क्या हुआ, ऊपर से मिट्टी गिर गई, ऊपर से मिट्टी गिर गई, इंसान फौत पा गया, तो क्या जो साहिबुल उजरा है जिसने लोगों को काम पर रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर दियत वाजिब होगा? क्या उसको जान की तलाफी करनी पड़ेगी? नहीं। तो वही कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल मादिन जुबार, कि अगर इंसान किसी इंसान को उजरत पर रखता है और सोना चांदी जमीन से निकलवाने के लिए या जमीन की खजाने को निकलवाने के लिए, और इत्तेफाक से वो इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, ऊपर से मिट्टी गिर गई, कुछ और हो गया, तो क्या है, वो जो जिसने उजरत पर किसी को रखा था, जो काम करवा रहा था, उस पर दियत और तमाम चीजें नाफिज नहीं होंगी, बल्कि क्या है, सब माफ है, उस पर दियत नहीं है, जमान कुछ भी नहीं है। वलबीर जुबार, इसी तरीके से अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को उजरत पर रखा कुआं खुदवाने के लिए, ऊपर से मिट्टी गिर गई, तो क्या है, उस पर भी जुबार है, यानी ला जमाना वला दिया, उसमें कुछ भी दियत और जमान वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से या उसके अंदर कोई इंसान आकर के गिर गया, उसके अंदर इंसान कोई कुआं खुदवा रहा है, कोई रात में आया, दिन में गया, देख नहीं पाया, गिर गया, अब वो वफात पा गया, तो क्या जिसने गड्ढा खुदवाया है वो उसका जिम्मेदार होगा कि जिस जो आदमी वफात पाया उसका, कि उसको दियत दे या जमान दे? नहीं, बल्कि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इंसान की नीयत यह है कि दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना, इसलिए गड्ढा खुदा रहा है या इसलिए कुआं खुदवा रहा है, तो वहां पर वो दियत का, उसके ऊपर दियत वाजिब होगी और उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, दुश्मनी में या इसी तरीके से किसी और चीज के लिए नहीं खुदवा रहा है, तो वहां पर उसके ऊपर कोई दियत और कोई जमान नहीं है। लेकिन अगर दुश्मनी में या इस तरीके से किसी तरीके से करवा रहा है, तो उलमा का इस ताल्लुक से क्या है, इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं कि उसके ऊपर दियत वाजिब होगी। उसके बाद कहा वो फिर रिकाज, रिकाज किसे कहते हैं? रिकाज और मादिन में उलमाए किराम फर्क करते हैं, और अक्सर उलमाए किराम इसके अंदर फर्क नहीं करते हैं। जुमहूर जो है वो रिकाज और मादिन को फर्क करते हैं। रिकाज कहते हैं कुनूजुल जाहिलिया अल मदफूना फिल अर्दी, ज़माने जाहिलियत के जो खजाने जमीन के अंदर दफन किए गए थे, उसको क्या कहते हैं? रिकाज कहते हैं। और मादिन क्या कहते हैं? जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के अंदर और उसके अंदर खजाने, सोना चांदी, नुहास, कापर और इसी तरीके से जो भी पैदा किए फितरत वगैरह, उसको निकालना, उस जमीन के अंदर पाई जाती है, उसको निकालना, वो क्या है? मादिन है। लेकिन रिकाज क्या है? जमाने जाहिलियत के जो लोग खजाने थे उसको लोगों ने दफन कर दिया था, जमीन के अंदर छिपा करके रखा था। अगर किसी को उस पर इत्तला हो जाए या कोई इंसान कभी खोदते हुए इत्तेफाक से उसको पा जाए, तो क्या करेगा? उसके अंदर उसको खुम्स अदा करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? खुम्स अदा करना पड़ेगा। जुमहूर जो उलमा है, जिसका साथ इमाम मालिक और शाफी रहमतुल्लाह दे रहे हैं, इन लोगों के यहाँ रिकाज और मादिन दोनों अलग अलग चीज है।
रिकाज के अंदर खुम्स है, रिकाज के अंदर क्या है, खुम्स है। और महादिन जो है उसमें खुम्स नहीं होता है, बल्कि उसमें जब निसाब तक पहुंचेगा तो आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और हनफिया वगैरह जो है इसी तरीके से और दीगर उलमाए किराम जो है वो लोग क्या कहते हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, इस तरीके से अबू उबैद और लक़ल बुखारी फी सहीही, ये जो उलमाए किराम है ये लोग कहते हैं कि मादिन और रिकाज अलग अलग चीजें हैं। मादिन में खुम्स नहीं है बल्कि रिकाज में खुम्स है। मादिन में अगर आप जो कुछ पा रहे हैं वो अगर माल निसाब तक पहुंचता, अगर माल निसाब तक पहुंचता है तब तो आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, अगर माल निसाब तक नहीं पहुंचता है तो आपको ज़कात नहीं अदा करनी पड़ेगी। लेकिन रिकाज का मसला यह है कि चाहे निसाब तक पहुंचे ना पहुंचे, जो कुछ भी आप ज़माने जाहिलियत के मदफूना खजाने वगैरह पा रहे हैं उसमें से आपको 5% अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में निकालना और देना है। और जबकि हनफिया और हनाफ का जो मज़हब है वो लोग कहते हैं कि अन्नहुम ला युफर्रिकून बैनल मआदिन वर्रिकाज़ि फहुम यक़ूलून अन्न फिल मआदिन अयदन अल खुम्स, मआदिन के अंदर भी क्या है, खुम्स है। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर जमहूर उलमाए किराम की हुज्जत को राजे करार दिया है। क्यों करार दिया? कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महादिन और रिकाज अगर दोनों एक ही चीजें होती तो दोनों के एक साथ नहीं, दोनों को एक साथ लेकर के आते। और कहते वल महादिन वर रिकाज जुबारुन, और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अत्फ करते हुए उसको अलग लेकर के आया है। गोया कि मुगायरा जो है ये एक अलग चीज पर दलालत करता है, दोनों की चीज के हुक्म को अलग अलग पर दलालत करता है, दोनों चीज के हुक्म अलग अलग हैं। यानी अत्फ जो है मुगायरत पर दलालत करता है, दोनों चीज के हुक्म अलग अलग हैं। अगर महादिन पर भी खुम्स होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसी पर अत्फ फौरन कर देते। कहते वल मअदिन वर रिकाज़ु फीही खुम्सुन और फीहिमा खुम्सुन, कि उन दोनों के अंदर क्या है, खुम्स है। लेकिन यहाँ पर महादिन को अलग करके बताया गया और महादिन का मसला जो उलमाए किराम के यहाँ पहले से साबित है, उसके बाद रिकाज को अलग करके लेके आएगा, उस पर अतफ किया गया। और ये जो मुगायरा है, ये मुगायरा दोनों के अलग अलग होने पर दलालत करता है। इसी को हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर राजे करार दिया है। और अहले हिजाज जो कहते थे उनके यहाँ जो लुगत इस्तेमाल होता था, और यही लुगत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था, कि वो लोग अन्नहुम युफर्रिकून अहलुल हिजाज अन्नहुम युफर्रिकून बैनल मआदिन वल हिजाज़ी फहुम फिर रिकाज़ी फहुम यस्तखदिमून व यस्तअमिलून लफ्ज़ अर्रिकाज़ी लिकनाइज़िल जाहिलिया अलमदफूना फिल अर्द, लिकनाइज़ व लिकुनूज़िल जाहिलिया अलमदफूना फिल अर्द, कि रिकाज जो इस्तेमाल करते थे कि जो जमाने जाहिलियत के खजाने जमीन के अंदर दफन किए गए थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहले हिजाज के लुगत को इस्तेमाल करते थे, वही बोलते थे। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज का माना होगा ये यहाँ पर रिकाज जमाने जाहिलियत के मदफून के माने में ही होगा। अगरचे रिकाज और मादिन को कहीं कहीं दोनों एक माने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद कहा वो फिल बाब अनस बिन मालिक व अब्दुल्लाह बिन अमर व उबादा बिन सामित व अमर बिन औफ अल-मुज़नी व जाबिर हादा हदीस हसन सहीह। और कहते हैं इस बाब के अंदर जैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का मज़हब है और मनहज है कि वो हदीस की बाब को जिक्र करने, हदीस को जिक्र करने के बाद कहते हैं इस बाब के अंदर फलां फलां सहाबी से यानी हदीस की मुताबात और शवाहिद को भी जिक्र करते हैं, मुताबात और शवाहिद को भी जिक्र करते हैं। जैसा कि यहाँ कहा इस बाब के अंदर अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह से रिवायत मज़कूर है यानी मुताबा है, और अब्दुल्लाह बिन अमर से भी है, उबादा बिन सामित से है, अमर बिन औफ अल-मुज़नी से है, जाबिर से है। और इस हदीस का हुक्म क्या है? और जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का मनहज है अन्नहु यहकुम अला कुल्ली हदीस, की वो एक एक हर हदीस पर हुक्म लगाते हुए यक़ूल हादा हदीसुन हसन व हदीसुन हसनुन सहीह व हदीसुन हसनुन गरीबुन फयस्तअमिलुना मिस्ल हाज़िल अल्फाज़, की इस तरीके से अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। वक़ाल अल-इमाम अलबानी रहमहुल्लाह अला हाज़िल हदीस अन्नहु हदीसुन सहीह, की हदीस क्या है? सहीह है। तो उम्मीद की आप लोग को ये बात इस हदीस की शरह समझ में आ गई होगी। आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।